پھر آج مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ گلگت بلتستان کے جو رانا شمیم ہیں انہوں نے بیان حلفی جب دیا تو میں اس وقت آئینی ادارے کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیاں اس ایک کمیٹی کا سربراہ میں بھی تھا. میں نے نوٹس کیا رانا شمیم صاحب کو, ثاقب نثار صاحب کو, ایک میڈیا ہاؤس کے سربراہ کو, اور انصار عباسی صاحب جو اس سٹوری کو جنہوں نے دیا تھا, بریک کیا تھا, سارے کے سارے لوگ اس کمیٹی کے سامنے آئے مگر ثاقب نثار نہ آئے. ثاقب نثار کیوں نہ آئے؟ ان کا تحفظ اس وقت کی حکومت کرتی آئی اور بیان بازی کرتی آئی. یہی فواد چودھری کمیٹی میں آ کر کہتے رہے کہ وہ تو نہیں آئیں گے. ان کی ویڈیو موجود تھی. کیا جو جسٹس جاوید اقبال تھی ان کی بھی ویڈیو تھی؟ کیا اداروں کے سربراہان جو ہیں وہ بلیک میل ہو کے آج بھی اس طرح کا انصاف کریں گے جو عمران خان لیتا رہا, جو انتقام لیتا رہا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاپولر شخص جو ہے اس کے لیے انصاف, اور جو یہ کہتے ہیں فواد چودھری, میں نہیں کہہ رہا, تو پھر یار طے کر لیں کہ جو 50,000 ووٹ لے گا وہ چھوٹی موٹی چوری دھمکی کسی کو دے سکتا ہے, جو 2 لاکھ ووٹ لے گا اس کا بھی ایک حد کا تعین کر لیں کہ وہ کس حد تک کسی کو دھمکی دے گا, اور جو 1 کروڑ ووٹ لینے والا کسی جماعت کا سربراہ ہوگا اس کو یہ اختیار پھر ہوگا جو آج ہے کہ وہ جو بھی ریاستی اداروں سے کھلواڑ کرنا چاہے وہ کر لے. مگر ہم بتا رہے ہیں کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو لوگ خود سے باہر آ رہے ہیں. اب میں جو بات سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, پاکستان کے مختلف صوبوں میں لوگ خود سے انصاف کے حصول کے لیے اور اس کی جو پاکستان کے آئینی اداروں کے خلاف جو بول رہا ہے, جو للکار رہا ہے, اس کی گرفتاری تک لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. کل جو میں دیکھ رہا ہوں شیخوپورہ میں بھی پنجاب بار کونسل کے جو ممبر ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. اس کے بعد کچھ اور شہروں میں سن رہا ہوں, کچھ صوبوں میں سن رہا ہوں, آزاد کشمیر سمیت سن رہا ہوں. بھائی میں تو ایک قانون کا طالب علم ہوں, پھر میں بھی شرکت کروں گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جب ناانصافیاں ہو جاتی ہیں تو ایک عدل, ایک آئین جس نے پاکستان کا پڑھا ہے وہ آئین کو پڑھتے ہوئے انصاف تو دیتا ہے. اور اگر سب مایوس ہو جائیں آئینی اداروں میں بیٹھے لوگوں سے تو وہ دیکھتے ہیں ترازو کی طرف اور محترم اعلیٰ عدلیہ کی طرف. ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے گا, لوگوں کو باہر آنے سے پہلے انصاف ملے گا. اس کی للکار جو ہے سلطان راہی والی, اس کو کوئی نکیل ڈالے گا, ادارہ نکیل نہ ڈالے گا تو پھر لوگوں کو مجبوراً انصاف کے حصول کے لیے باہر آنا پڑے گا. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. اور خاص طور پر میں پرائم منسٹر سے یہ کہوں گا کہ وہ لوگوں کی آواز سنیں. اگر آپ نواز شریف سے, ذوالفقار بھٹو کی جماعت سے انصاف نہیں کر سکتے تو لوگوں کے ساتھ جو یہ کھیل کھلواڑ کر رہا ہے عمران خان, اس کی کرپشن اور آئینی حدود و قیود کو جو یہ پھلانگ رہا ہے اس کو نکیل نہیں ڈالیں گے تو کوئی آپ کو
जिस जज्बे से आप इजहार कर रहे हैं कि हमने सियासत कुर्बान कर दी रियासत के लिए, रियासत को बचाने के लिए, रियासत उस वक्त तक नहीं बचेगी जब तक आप आइन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, जब तक आप आइनी अदारों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, जब तक आप लोगों को इंसाफ यकीनी नहीं बनाएंगे और इंसाफ देने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेंगे। मियां साहब ये बताइएगा कि अभी पिछले दिनों एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि जो कच्ची वादियों या दीगर जो जगह हैं वहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं सियासतदान, उनकी नंबर प्लेट्स उनके जो है पट्टियाँ वो नहीं लगेगी। हालांकि सियासतदान उसके लिए स्ट्रगल करता है, सब कुछ करता है, तो उसके बावजूद ये हुक्म आया तो इस पर किसी भी पार्लियामेंटेरियन ने कोई इस पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया, ना कोई ऐसा बयान दिया कि हाउ इज पॉसिबल। देखें, बड़ा एक मकसद है जिस मकसद के लिए आज हम बात कर रहे हैं, ये छोटी बात है ना लगें मगर इंसाफ मिले। अच्छा मियां साहब, यहाँ पर अभी मियां साहब आप अभी वज़ीर दाखिला से कह रहे हैं कि इमरान खान को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, वज़ीर आज़म से भी आप जो बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, आपके तो ये कोलीग भी हैं, आपके करीबी लोग भी हैं, तो आप खुद उनसे आपकी बातचीत हुई इस हवाले से? देखें, मैं वहाँ भी बात करता हूँ और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये अपने तौर पे बात नहीं कर रहा, मैं ये गली कूचों में जो बातें हो रही हैं, जो जलसे जुलूसों के स्टेजों से बातें आ रही हैं, पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल दौर से गुज़र रहा है और ये शख्स उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है, ये ब्लैकमेल कर रहा है हालात से, अदारों को भी, अदारों के सरबराहान को भी पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है इससे फ़ायदा उठाते हुए ये अपने लिए NRO लेना चाहता है जो हम किसी तौर नहीं लेने देंगे। अच्छा ये बता दीजिए मियां साहब, ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि कौन से लोग हैं जो इमरान खान की गिरफ्तारी में रुकावट बने हुए हैं, खलाई मखलूक है, कोई बैरूनी ताकतें हैं, कौन है, नाम तो बताएं आप उनका। देखें, मैं समझता हूँ कि रियासत जिस मुश्किल में है, अवाम जिस मुश्किल में है, कोई पाकिस्तानी जो है इस साजिश का हिस्सा नहीं बन सकता, मगर जो ये खिलवाड़ कर रहा है मैं समझता हूँ पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतें इसके पीछे हैं और इक्का दुक्का यहाँ से भी जो सहूलतकारी हो रही है, यही तो मेरा मुतालबा है, यही तो कौम का मुतालबा है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कौम को एतमाद में लेते, क्यों नहीं बताते कि क्या वजह है कि नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सकता, क्या वजह है कि इसके गुनाहों की इतनी लंबी फहरिस्त है, इसके बावजूद इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मियां साहब, जैसे कि आपने ऐलान किया कि कल शेखुपुरा से आप जलसों का आगाज कर रहे हैं कि ये जो इमरान खान है ये इदारों पर दबाव डाल रहा है और उसको पकड़ा नहीं जा रहा है, आप समझते हैं कि इमरान खान जलसे कर रहा होगा, फिर नून लीग और PDM की जो दीगर जमातें हैं वो भी अपनी जो स्ट्रीट पावर लेके आएंगी सड़कों पर, इससे अफरा तफरी होगी। ये बेहतर नहीं है कि जो इदारे हैं जिन्होंने कानूनी कार्रवाई करनी है, जिसके खिलाफ भी अगर इमरान खान के खिलाफ महीने हजार का केस है या दूसरे केसेस हैं, तो वो फौरी तौर पर एक्शन ले ताकि ये मुल्क अफरा तफरी से मजीद बच सके। उस्मान, आप बात ठीक कर रहे हैं, मगर मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं कि मुस्लिम लीग या बाकी जमातें जो हैं वो जलसे जुलूस नहीं कर रही, खुद से जो लोग निकल रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि वो मौका नहीं आना चाहिए कि लोग खुद से निकल के मज़ीद जो ये बगाड़ मुल्क के अंदर देखना चाहता है इसकी ख्वाहिश कोई पूरी करे, बल्कि अदारों में बैठे लोग जो हैं, अदारों के सरबराह जो हैं, इसकी गुफ्तगू का, इसके एजेंडे का, इसकी साजिश का, इसकी ख्वाहिश का नोटिस लें ताकि मुल्क को इंतशार से बचाया जा सके, जो इंतशार ये पाकिस्तान के अंदर पैदा करना चाहता है। और ये पहली दफ़ा नहीं है, इस शख्स ने पहली दफ़ा सिविल नाफरमानी का, हुंडी के ज़रिए पैसा भेजने का, अदारों पर हमला इसने किया था और ये ख्वाहिश आज भी उसकी तकमील करना चाहता है। देखें, नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ, आज तक बेगुनाह होने के बावजूद नवाज शरीफ बाहर बैठा है, मगर हमने कभी भी अदारों पर हमले का तसव्वुर नहीं किया, हमने कभी भी अपनी जुबान इसलिए नहीं खोली, हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, हमारे साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई इस रियासत के साथ, जिसने नाइंसाफ़ियाँ की
इस रियासत को जिसने जितना नुकसान किया, मगर हमने फिर भी वो बात नहीं की, इसलिए कि कौम को, हाँ ये बात जरूर करते आए, करते रहेंगे कि आईनी हदूद में रहते हुए काम करें, इसी में मुल्क की भलाई है। हम कभी भी राज जो हमारे पास हैं वो ज़बान पे नहीं लाना चाहते, मगर किसी को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि कोई ज़बान पे बातें लाए और ब्लैकमेल करे अदारों में बैठे लोगों को, और अपनी मनपसंद की फैसले ले और ख्वाहिश करे कि मुझे एनआरओ मिले, ब्लैकमेल करके, ये हम नहीं होने देंगे। अच्छा मियां साहब, आप अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन मार्क छोड़ के चले जाते हैं, लोग उस सवाल का जवाब ढूंढते रहते हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, मियां नवाज शरीफ साहब के छोटे बिरादर जो है वो वजीर आज़म पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग नून के डाई हार्ड वर्कर और कुर्बानियां देने वाले राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला है। सर कौन है जो इस शख्स को गिरफ्तार करने में रुकावट बना हुआ है? कौम की रहनुमाई करें, कौम निकलेगी, वगरना कौम तो उसके पीछे। देखें बात